میری بات سامنے کو یاد کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، بات مجھے جانتی میں بھی جانتی ہوں، سوائے حدیثوں کے اور ترجمے وہ چیزیں ایسی ہیں جو ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنی ہوتی ہیں، لیکن باقی چیزیں تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات۔ اس میں کیا آ گیا کہ قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید کی نعمتوں کا کیا بیان ہے، اس میں پچھلی قوموں کے قرآن مجید کا تعارف۔ میڈم ہاں، قرآن مجید کا تعارف تو انسان اپنے اون سے لکھ سکتا ہے نا۔ یہ تو میرا سوال ہے۔ ہاں دیکھ، تو میں تجھے وہی تو بتا رہی تھی، تو نے مجھے اٹکا دیا تھا۔ دیکھ، قرآن مجید کا تعارف تو نے سب سے پہلے ڈیفائن کر لیا نا، پھر اس کے بعد تم نے ہیڈنگ لگائی قرآن مجید میں کتنی صورتیں کتنے پارے، یہ ہیڈنگ لگانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد تم نے ہیڈنگ لگائی کہ آگے قرآن مجید میں کون کون سی نعمتوں کا اور موضوع کا ہے۔ پھر تم نے ایک اور ہیڈنگ لگا لی کہ پچھلی قوموں کے واقعات، مجھے تو پتہ ہے نا پچھلی جتنی بھی ہاں تو پاگل 9 میں کر، میٹرک میں کر، فرسٹ ایئر میں کر، قرآن تو قرآن ہے نا، وہی چیز ہوگی، تھوڑا سا لمبا کر کے لکھنا ہوگا بس۔ وہی تو کہہ رہی، پچھلی قوموں کے کیا کیا واقعات ہیں، قرآن میں کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سے موضوعات ہیں، کون کون سے انبیاء کے بارے میں، سب چیزیں آپ نے ان سے اتنا تو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں، تو نالج ہے نا۔ ہاں، اب دوسری چیز کیا ہے، وحی کا مفہوم اور اس کی صورتیں۔ خبر یہ وحی والا میں تجھے کھولتی ہوں، وحی کیا ہے؟ وحی کے لفظی معنی ہیں چپکے سے کوئی بات دل میں اتر جانا، یہ اشارہ کرنا۔ شریعت کی اصلاح میں وحی کا اطلاق اس کام پر ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء و رسول پر نازل ہو، خواہ بذریعہ فرشتہ ہو یا کسی اور ذریعے سے، یہ وحی نبوت ہے اور انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ سمجھ گئے وحی کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کی خبر کاٹنا، میں تجھے لائن سے بتا رہی ہوں، چپ چپ۔ وحی کی صورتیں کیا ہیں؟ وحی کی صورتیں کیا ہے؟ یہ بھی تمہیں بات پتہ ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو ان پر ایک بہت بوجھ ہوتا تھا، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا تھا، بہت مشکل تکلیف سے گزرتے تھے ہونا۔ حضرت عائشہ نے کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ آخر میں فرماتی ہیں کہ میں نے سب جاڑوں کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے، ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی، مطلب اتنا مشکل ہوتا تھا کہ ٹھنڈ میں بھی نا ان کے پیشانی مبارک سے پسینہ آ رہا ہوتا تھا۔ صحیح ہے، بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی یہ کون ہے جس کو آپ پڑھا رہی ہو؟ جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا، اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ وہی سمجھ آ گیا، وہی کی صورتیں سمجھ آ گئی، کس طرح اس کی صورتحال ہوتی سب کچھ ہوتا ہے۔ اب وہی کی اقسام کیا ہوتی ہے، یہ دیکھ، بہت ساری وہی کے ہوتے ہیں نا، وہی کی دو اقسام ہیں، وہی مطلوب، وہی غیر مطلوب۔ قرآن پاک کو
वही मत्तू, जबकि हदीस मुबारक को वही गैर मत्तू कहा जाता है। कहने को हदीस रसूल का कलाम हदीस रसूल का कलाम होता है और वही खुदा के कलाम को कहा जाता है। लेकिन चूँकि नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते कि वही कुछ बोलते हैं जो उन्हें बोलने का हुक्म किया है। मत्तू और गैर मत्तू कहने की वजह ये है कि चूँकि नमाज में कुरान की तिलावत की जा सकती है और हदीस की तिलावत नहीं की जा सकती, इसलिए कुरान को वही मत्लू और हदीस को वही गैर मत्लू कहा जाता है। समझी? एक होता है वही मत्लू, तो कुरान को कहा जाता है जिसमें अल्लाह का हुक्म है, और एक होता है वही गैर मत्लू, उसको हदीस कहते हैं। समझी? आप लोगों ने और भी इसमें था बहुत सारी ये वाला कर लेगी ना तू, बस वही वाला समझ गई ना? हाँ, राइट। आगे बढ़ो। अब तीसरा टॉपिक क्या है? यार इन्होंने ये रिड्यूस लेवल सिद्धि में क्यों लिखा है? हम लोग क्या सिद्धि हैं? देख तो सही। अब क्या लिखा है? जमा आई तदबीर कुरान, ये वाला तो वही सब कुरान का ये ना, ये देख लेना। फिर उसके बाद आया तो तर्जुमा आई तशरीह, ये वाला भी हदीस शरीफ, ये सब तो ये हदीस है। अब ईमानियात में आ जाए, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, फरिश्ता से ईमान। अल्लाह माफ़ करे, फजूल में ज़बरदस्ती से भी पढ़ा ले में यार, सिद्धि खत्म हो गई फिर पढ़ा है। अब अकीदा तौहीद पे पहुँच, मेरा अकीदा तौहीद पेज नंबर 125। हदीसें वगैरह खुद कर लेगी ना? ठीक है। अब अकीदा तौहीद क्या है? अकीदे का मतलब है गान बांधना, तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक मानना। ठीक है, चिरा लगाना, ये गांठ बांधना इसको कहते हैं। सही है। दूसरी तौहीद के लफ्ज़ी मायने है एक मानना, अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात और सिद्दीक़ तकाज़ों में अल्लाह ताला को यकता जानना और किसी को शरीक न ठहराना तौहीद कहलाता है। ये पूरा अकीदा तौहीद में यही है। अकीदा तौहीद के तकाज़े हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है अभी ये लोग इस तरह के सवाल नहीं देते ना, डेफिनेशन भी पूछते हैं, कुछ ना कुछ पूछते हैं, फजीलत बताओ या तकाज़े बताओ, इस तरह। तो ये अकीदा तौहीद के तकाज़े क्या हैं? तौहीद के बुनियादी तकाज़े इतनी अहमियत रखते हैं कि उनमें से किसी एक का भी इनकार अल्लाह पर ईमान रखने के दावे को बेमायने कर देता है। वो शख्स उस वक्त तक सही मायनों में मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि वो इस अकीदे पर पूरे मफ़हूम के साथ ईमान ना लाए। अकीदा तौहीद के कुछ अहम और बुनियादी तकाज़े हैं जिनका यकीन रखना और अमल करना ज़रूरी है। अल्लाह की रज़ामंदी, सिर्फ अल्लाह ही है जिसकी रज़ा जोई की इंसान को फ़िक्र करनी चाहिए। सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत, हकीकी मकसद सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अहकाम पर अमल, अल्लाह की सिफ़ात पर ईमान। मतलब ये सारी चीज़ें मतलब हर चीज़ पर ईमान रखना, ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह को मान लिया तो मतलब हर चीज़ पर उसकी मोहब्बत और ये अल्लाह के अहकाम पर अमल और सिर्फ अल्लाह को मानना और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की बातों, अल्लाह की रज़ामंदी हर चीज़ में होना। और इसके बाद क्या, ये वाला अकीदा तौहीद भी तो अपने से लिखते ही मुझे पता है। इसके बाद क्या है? शिर्क। ये आप किसको पढ़ा रही हो? फिर तो खुद नहीं पढ़ सकती है? हम लोग एक दूसरे को पढ़ाते हैं। दिया मैं इसमें, इन्होंने नहीं दिया, वरना क्या होता है? शिर्क के लफ्ज़ी मायने हैं हिस्सेदारी या साझी पर से। अब दूसरा है अकीदा
रसालत क्या होता है बेटा बताइए? शर्म आनी चाहिए बेटा, तुम मुसलमान है। देख अकीदे का मतलब तुझे पता है ना, अकीदे का मतलब होता है किसी चीज़ पर पुख्ता यकीन रखना। इसी तरह अकीदे तौहीद अल्लाह को एक मानना। अकीदे रिसालत, रिसालत का मतलब होता है जितने भी अम्बिया आए, जितने भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब जिस तरह से हम पैगाम वगैरह पहुँचाए, तो सब कुछ इन सब चीज़ों पर यकीन रखने को कहते हैं अकीदे रिसालत। हमारा अकीदे आखिरत भी है। अकीदे आखिरत मतलब आखिरत पे यकीन रखना। अकीदे का मतलब है, अकीदे का मतलब तो तुझे पता होना चाहिए ना, यकीन रखना। हाँ सही बात कर जा। अभी मैंने तुझसे पूछा अकीदे रिसालत कितनी भूल गई? समझ गई रिसालत क्या है? जितने भी अम्बिया कराम भेजे गए थे उन पर यकीन रखने को कहते हैं अकीदा रिसालत। और ये बात तुझे पता है कि जितने भी अम्बिया आए थे वो मुख्तलिफ जगहों के मतलब वहाँ पर पैगाम पहुँचाने आए थे, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह पर मतलब पैगाम पहुँचाने आए थे। ये नहीं था कि उनकी कोई स्पेसिफिक जगह थी कि वहाँ पर ही उनको सिर्फ पैगाम पहुँचाने, वरना पहले के टाइम में इस तरह होता था कोई क्या कहते हैं, कोई फ़लस्तीन में आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, कोई इस मुल्क में आ रहा है, कोई इजिप्ट में आ रहा है, मतलब अलग अलग जगहों पर उनको मुकर्रर किया जाता था कि किसी ने यहाँ जाके पैगाम पहुँचाने, किसी ने यहाँ जाके पैगाम पहुँचाने। समझ गई? अब है फरिश्तों पर ईमान। ये मैं सारा रिड्यूस सिलेबस से देख के बता रही हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या है फरिश्तों पर ईमान। मलाइका मलक की जमा है जिसके मायने पैगाम पहुँचाने वाला। चूँकि ये फरिश्ते अल्लाह ताला के अहकाम बंदों तक पहुँचाते हैं, इसलिए उन्हें मलाइका कहा जाता है। फरिश्तों से मुराद अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिसे नूर से पैदा किया गया है। फरिश्ते हर हाल में अल्लाह ताला की अताअत व फर्माबरदारी करते हैं और किसी सूरत उनकी नाफरमानी नहीं करते। मलाइका या फरिश्तों पर ईमान लाना दीन के बुनियादी अकायद में शामिल है। समझ गई? अब फरिश्तों की तादाद कितनी है? फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला के सिवा उनकी सही तादाद कोई नहीं जानता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा की किस्सा मेराज वाली हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान पर बैतुल मामूर पर पहुँचे तो देखा कि उसमें हर रोज़ 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ रहे हैं, और जो उसमें एक बार नमाज पढ़ कर चला जाता है वो दोबारा उसमें लौट कर नहीं आता, यानी फिर कभी उसकी वापसी की नौबत नहीं आती। ये बात तो जानती है क्या कहते हैं, खाने काबा से बिल्कुल ऊपर बैतुल मामूर नाम के आसमान में जहाँ पर जब भी तवाफ़ होता है वो तवाफ़ फरिश्ते करते हैं, और वहाँ पर कितने फरिश्ते, हाँ वहाँ पर जो फरिश्ते एक दफ़ा आ जाते हैं तवाफ़ कर लेते हैं तो उसके बाद उनकी बारी नहीं आती। ये सही बुखारी है। और अभी ठीक है, फरिश्तों की तादाद किसी को भी नहीं पता। फरिश्ते इंसानी शक्ल में, कभी फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से इंसानी शक्ल व सूरत में भी ज़ाहिर होते हैं, जैसे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुताबिक मालूम है कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास भेजा तो वो उनके पास एक आम इंसान की शक्ल में आए थे। मतलब इससे यह वर्डिंग लगा सकती है कि फरिश्ते इंसानी शक्ल में, मतलब फरिश्ते इंसानी शक्ल में भी आते हैं। और सबसे ज़्यादा फेमस को उर्दू में क्या कहते हैं, मारूफ ये है कि हज़रत मरियम के पास वो आए थे ना इंसानी शक्ल में, मतलब
پڑھا. پھر بھی یاد رہتا ہے. ہاں تو بدتمیزی نہیں کر کے میری بات سنو. فرشتوں کی ذمہ داریاں. بعض فرشتے مخصوص اعمال کے لیے مقرر ہیں جن کی تفصیل حسب ریز ہے. حضرت جبریل امین کا کیا مطلب مقصد ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ مطلب سب کی الگ الگ ڈیوٹیز ہے نا. اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچانے پر معمول ہے. یہ تو مجھے پتا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ وحی پہنچاتے تھے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ وحی پہنچاتے. اور حضرت میکائیل کیا کرتے تھے؟ ان کے ذمہ بارش اور نباتات یعنی روزی پہنچانے کا کام ہے. حضرت میکائیل روزی پہنچانے کا کام ان کے ذمہ سے ہے. حضرت اسرافیل قیامت کی گھڑی اور مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے وقت سور پھونکنے پر معمول ہے. صحیح ہے. حضرت اسرائیل موت کے وقت روح قبض کرنے پر معمول ہے. مالک یہ فرشتہ جہنم